So in continuation to the first lecture which we talked about, it was about the application of biotechnology and the particularly in the area of tuberculosis and how what advance we have made and how we can do something in future also. So this second topic is about, we will have this first slide please. So this particularly is very useful to you people, those who are going to pursue their career in the area of research, and for faculties also, because writing of a good research proposal and getting a good grant is very important. I do feel that for having very good research proposal, you should have very good plan of your study, assumptions of your study. There should be many whys, why you want to take this study. So this is very important. And once you are able to answer yourself, okay, this is the reason, this is the point where we need certain clarity, probably that will be the basis of the building of your research project or proposal. And of course, depending upon your choice of area of interest to work further on. So let us have the first slide please. Next please. So if we talk about this, what is it and what is it not? So what could be the research? Basically, we have to differentiate between two important points. Something available information in some form which is in the public domain, and merely collection of that information or gathering of that information is not research. That can be used for you to make advance your knowledge, understanding. This is a reading of a book. And some information or reports available on certain aspects. So that is the information available, or the collection, merely collection does not qualify to any kind of research, but it going to establish certain understanding on your knowledge, or it going to improve your understanding. So research starts from where? That some kind of strategic planning or the procedure you have to follow. 1, then 2, then 3, then 4. Means certain sequential gathering of information with the purpose leads to the development of the hypothesis or assumptions that yes, this is the area. For example, this is the class. We have the students of different semesters. We have faculties from different disciplines. We have others also. Normally we can list it and somewhere store it. This is information available. My question is that let us find out how many of the students who attended the meeting today from the group of biotechnology. And why I want to see? Because we want to train them on certain aspects on biotechnology. What will happen then? They will be able to find out some research orientation or the development of the mind, or the inclination toward the
having research in the area of biotechnology. So series of question will lead you, then what could be the approach to find out this information? So systemic gathering of information for certain, answers, answer questions to give the answers. They fall into the category of the hypothesis or the observations based upon certain findings. So that is to be taken into account. So to solve any issues or to contribute something based upon certain observations where you are contributing to certain component of an unanswered questions, or the question answer is there but you want to add something add on that. So that is primarily differentiate in between the two. But there is a very finer line. The information sometimes also come into the cross of the study design or the kind of investigations as well. Next please. So again my focus will be the biomedical research, because see it's a very huge area. So since the people are here, so let us focus on the hypothesis or the projects writing or any kind of material which can be basis of the research future on the biomedical research. So research, if we say, primarily improves our health, our well-being, you can say, will lead to the biomedical research. Next please. So a lot of definitions are there, as you know. What is health? WHO says, it has already given, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. अब इसको ज़रा पढ़िए तो देखिए, अब मतलब कैसे आप कहोगे कि आई एम ए हेल्दी पर्सन। ये भी एक क्वेश्चन है कि हु इज़ अ परफेक्ट हेल्दी पर्सन। मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है ढूंढना। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका स्वास्थ्य जो फिजिकल पैरामीटर पे बेस है, आपकी BMI कितना है, आपका हाइट है, वेट कितना है, आपकी लंग कैपेसिटी कितनी है, कितना वॉक कर लेते हैं, कितना चल लेते हैं, आप थकते नहीं हैं, कितना वजन उठा लेते हैं, ये एक फिजिकल पार्ट है। उसके अलावा आपकी मेंटल इंटेलिजेंस कैसे है, सोचते कैसे हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं सोसाइटी में, जिम्मेदारी कैसे महसूस करते हैं, वो भी आपके एक हेल्थ के पार्ट पे कहीं ना कहीं वेलबींग के पार्ट पे जुड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं उन्होंने एक निकाला तरीका कि भाई अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर आप सोचते हैं कि हाँ यस हमें इन चीज़ों में हमारा एक जो नॉर्मल बिहेवियर है वो है, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल हेल्थ ऑफ द बॉडी या द कंडीशन, तो हम कह सकते हैं कि भाई आई एम हेल्दी पर्सन, समथिंग लाइक दैट। सो हेल्दी कहना भी एक स्टेट है जो वेरी करता है हमारी सोसाइटी में, कम्युनिटी में, across the world. Next please. Again I am giving you the various facets of the research, dimensions of the research. Again basic, as mentioned in the first slide also, there could be spiritual, emotional, physical, intellectual, social, and these aspects normally cover under the epidemiological research. We base certain kind of assumptions and certain kinds of the requirements and hypotheses. Then we do the field studies using the certain protocol or the study method or design. Next please. These are the huge area of type of research. You can just go through it. Basic में क्या क्या हो सकता है, क्लिनिकल में क्या क्या हो सकते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल में क्या क्या हो सकता है, उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, किन किन स्टडीज़ को हम ले सकते हैं। अगर हम बेसिक में देखें, जैसा मैंने कहा था कि इट इज़ द स्टडी नॉर्मली यूज टू डू सर्टन बेस वर्क which could be the basis for certain applied research. That's very important, and it may be for the sometime basic research is very good, you can have very good publications also, but वो अपने डोमेन तक सीमित रह जाती है। उसका फर्दर एप्लीकेशन में भी 5 साल 10 साल 2 साल के बाद कोई किसी ने देखा भाई ये अच्छी फाइंडिंग है,
व्हाई नॉट लेट अस एक्सप्लोर फर्दर। तो वो अप्लाइड की तरफ जाता है। देन बेसिस उसने बनाया, बेसिक साइंटिस्ट ने, फिर उसको अप्लाई किया किसी दूसरे ने, थर्ड ने फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लेवल पर ले गया वो। तो यह बैकबोन है एक रिसर्च का, लेकिन इसमें अल्टीमेट नतीजा नहीं है। अब मान लीजिए कोई ऐसी स्टडी है, आप किसी भी ऐसे बीमारी का ले लें, जैसे आपका डेंगू बुखार ले लीजिए आप। उसमें क्या होता है कि डिजीज़ का जो भी एक पैथोलॉजी है, जो सिस्टम है, जो कंडीशंस हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो मानसून पीरियड में जब वेक्टर डेंसिटी एक हाई होता है तो ह्यूमन की तरफ ट्रांसमिशन है, वो एक पीरियड है, 2 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना। उसमें अगर आप बेसिक साइंस करने बैठ जाएंगे तो फिर तो लोग खत्म ही हो जाएंगे। तो मतलब क्या इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। मतलब द नीड ऑफ द डे है कि वट एवर टूल यू हैव, यू इम्प्लीमेंट एंड फाइंड आउट द गैप कि कहाँ पे मैं क्या इम्प्लीमेंट करूँ जिससे हमारे कम्युनिटी में, सोसाइटी में चीज़ें विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उनको मैं कंट्रोल कर ले जाऊँ। तो दैट डिपेंड्स। जैसा कहीं आउटब्रेक हो गया किसी भी बीमारी का, तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट कि उनका क्या है। तो गवर्नमेंट के पार्ट पे मेन फोकस है कि यू हैव टू फाइंड समथिंग जो इमिडिएटली उनके यूज़ का हो, किसी भी डिजीज़ को या किसी भी हेल्थ कंडीशन को रोकने के लिए। तो ये मेनी फेसेट हैं, जैसा मैंने कहा था शुरू में कि क्लिनिकल रिसर्च में थोड़ा सा मैं डिटेल में यहाँ जाऊँगा। क्लिनिकल रिसर्च इज रिलेशन विद द ह्यूमन हेल्थ नॉर्मली। इसके बहुत सारे फेजेस हैं। ये बहुत सारा क्वेश्चन उठता था कि वो फेज 1 ट्रायल हो गया है कोविड वैक्सीन का, वो 2 होगा कि 3 होगा और 4 होगा, क्या कितने और लोगों ने लगा दिया उसमें, कब हम लोगों को मिलेगी। इसके कुछ नाम्स हैं। जब भी कोई मालिक्यूल, मैं सीधे उसी पे आता हूँ, जब भी कोई मालिक्यूल हमारे हाथ में आता है तो ये होता है कि भाई सेफ्टी इज़ द फर्स्ट। कुछ कितना ही अच्छा क्यों ना है, एक जहर, पॉइजन, मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस को 1 मिनट में अच्छा कर देता है, वेरी गुड, मगर वो खुद पॉइजन है, जब खा के हम ही नहीं बचेंगे तो टीबी का पैथोजन बचे ना बचे, क्या मतलब उसका, इसे मीनिंगलेस। तो देयरफॉर सेफ्टी इज द फर्स्ट। क्या हम अपने ह्यूमन पॉपुलेशन में वो मॉलिक्यूल हम दे सकते हैं? और डायरेक्ट ह्यूमन पे नहीं जा सकते, पहले एनिमल पे हमें चेक करना होगा कि क्या वो डोज टॉलरेबल है, उनमें क्या इफेक्ट है। फिर ह्यूमन में किस पे ले सकते हैं? सब पे नहीं, महिलाओं पे नहीं, बच्चों पे नहीं, प्रेग्नेंट महिलाओं पे तो बिल्कुल ही नहीं। हेल्दी वॉलंटियर्स होंगे उन पे लेंगे। वहाँ से अगर वो आगे निकल के गई देन वी विल सेकंड फेज में। तो इसके बहुत सारे फेजेस हैं। दैट्स व्हाई क्लिनिकल ट्रायल जो है ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत ही रूल एंड इसमें रेगुलेशंस होते हैं। यही हैरानी थी वर्ड के लिए। वर्ड ने इसमें कुछ इमरजेंसी यूज़ के लिए कुछ दो एक को एक में जोड़ दिया, फेज 2, 3 को इकट्ठा कर दिया, कुछ चीज़ों को उन्होंने हटा दिया, मतलब जस्ट टू रीच, बिकॉज बट नॉर्मली दैट इज नॉट द प्रोसीजर। तो डिपेंडिंग अपॉन द चैलेंजेस गवर्नमेंट और द साइंटिफिक बॉडी कैन डिसाइड, बट ये नॉर्मल कोर्स है कि पहले आप हेल्दी इंडिविजुअल में उस मालिक्यूल को देखें। बिफोर दैट अगर आपके पास एनिमल सपोर्ट का डाटा है कि भाई ये सेफ़ है एनिमल में, तब क्या 30 या मैक्सिमम 100 इंडिविजुअल, ज़्यादा नहीं, जो हेल्दी हों और जिनकी पूरी तैयारी होगी, कुछ अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर वहाँ पे वो निकल गई डायरेक्ट, देन सेकंड फेज में आएगी, देन उसमें कुछ लिमिटेड नंबर में जिनमें हेल्थ कंडीशन है, बीमारी है, उन पे प्रयोग करेंगे डोजेस के साथ में। फिर अगर वहाँ क्वालिफाई करती है तो सेकंड फेज में जाती है, तो बड़े कोहार्ट में लेंगे, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा लेंगे वहाँ पे। तो ये लंबी प्रक्रिया है। इसका भी एक पार्ट ऐसा है जिसमें हम उन चीज़ों को गौर करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल बनने से लेकर के कब जाके एक क्लिनिकल यानी ह्यूमन यूज़ के लिए बनता है। ऐसे लंबा प्रोसेस है ये। तो दिस इज़ वन एरिया। बेसिक एरिया इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज एंड वाइड, but primarily that basic research needs further to go into the clinical or the application or the intervention studies। तो जो बेस हम यहाँ लड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई ये जो मॉस्किटो नेट है उसमें एक दवाई लगाई दी जाए तो वो मॉस्किटो उस पर बैठेगा, तो बैठते ही वो दवाई इसके पैर में लगेगी,
वो वहीं से गिर जाएगा, मर जाएगा, वो नहीं काट पाएगा। तो पहले बेसिक स्टडी करके देखा गया कि भाई उस इंसेक्ट को क्या हम लेबोरेटरी कंडीशन में रेयर करके उस नट पे बिठा के देखें पहले, तब फील्ड में ले जाएं। तो जो एलेनन नट कहलाती है, वो एक पर थ्रेड होता है जिससे वो उसमें सोक कर देते हैं, तो उनकी जो थ्रेड होते हैं उसमें लग जाती है वो। अब क्या है कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन थ्रेड के अंदर में दवाई घोल डाल देती है, तो वो धागे के अंदर में ही वो मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो लेबोरेटरी में हुआ, जब वहाँ प्रूफ हो गया तो फील्ड में उतारा गया। फील्ड में जिन जिन एरियाज में मलेरिया प्रॉब्लम था उसने बड़ा अच्छा काम किया। दवा के साथ साथ ये भी एक इंटरवेंशन रहा है। तो ये बेसिक रिसर्च और इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस है। ये मैं वही कहना चाह रहा था कि यहाँ पे जितनी भी स्टडीज हैं एपिडेमियोलॉजी की, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलती हैं। यहाँ बेसिक में क्या है कि जो चीज़ें हमने वो दी हैं साइंटिफिक कम्युनिटी की, वो है तो बेस्ड अपॉन द नीड एंड द यूटिलिटी ऑफ द रिसर्च method or technology or project, we can broadly categorize into basic research, clinical research, epidemiological research, जिसमें हम इंटरवेंशन भी बोलते हैं, कंट्रोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो रिसर्च हम क्यों करते हैं, व्हाई, व्हाट आर द नीड ऑफ दैट, आप पढ़ सकते हैं। रिसर्च नीड्स टू न्यू डिस्कवरीज, कांसेप्ट, understanding, knowledge, thereby impacting lives of people by improving health and well-being। ये एक बायोमेडिकल रिसर्च को चूँकि मैंने फोकस करके रखा है तो मैं उस पर बोल रहा हूँ। तो बेसिकली ये एक ऐसा एरिया है जिसमें लॉट ऑफ डिसिप्लिन इन्वॉल्व हैं। जो जिस क्षेत्र में काम करना चाहे, डिपेंडिंग अपॉन द नीड दे कैन वर्क ऑन दैट, एंड उसी के हिसाब से आप चुनाव कर सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब वही एक कम्बिनाइन जो बेसिकली जो अप्रोच, जो थॉट है, थॉट को कैसे हम उसको साइंटिफिक अप्रोच में ले जाएं, यानी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो किन किन चीज़ों पर बेस होनी चाहिए। हमें उसका एक उद्देश्य भी है कि हमारा जो नॉलेज है उसको हम गेन करेंगे, उसके बाद में उसको किस मेथड के साथ जोड़ करने के बाद में वी विल बी गोइंग टू यूज़ फॉर ए सर्टेन टेक्निक और मेथड्स to develop certain methods or techniques, and ultimately then how that method is going to be used for the medical research। तो ये उसके एक अलग अलग आइसोट से दी आयाम है, उसके एक अलग अलग पहलू हैं जिनको हम थॉट प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब साइंटिफिक में देखा जाए तो आपका पहला इश्यू आता है कि कोई भी आपका ऑब्जर्वेशन है, अगर आप देखें कि आपने कुछ चीज़ें नोट की सोसाइटी में, समाज में, अपने लेबोरेटरी में, तो एक आपके मन में जिज्ञासा हुई, एक हाइपोथेसिस जनरेट हुई, यार कि ऐसा हो सकता है क्या, कैन इट बी। सो उसके आधार पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, देन यू कैन थिंक यस इट मे बी। जैसा बहुत से लोग ने पढ़ा होगा, एक नल हाइपोथेसिस है। वो पढ़ाने का मतलब ये होता है, वो कहती है कि जो आपने सोचा है, जो आपको हाइपोथेसिस है, वो गलत है। वो कहती है कि अगर हमको तुम गलत साबित कर ले जाओ, मतलब कि जो मैंने सोचा था वो कहती है गलत है। आप जैसा मैं कहता हूँ कि जितने में बॉयज़ एंड गर्ल्स बराबर हैं, दिस इज वन हाइपोथेसिस। यहाँ पे जो है नॉर्मली जो रेशियो है बराबर है, यहाँ पे अटेंडेंस का हमने मान लिया, मगर जब हमने देखा तो पता चला गर्ल्स 60 हैं, बॉयज़ 40 हैं, तो नल हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग हो गई। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन कहता है नहीं, हमारी फाइंडिंग ये निकली कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे हटके है ये। अब क्यों है ये, वाई दे आर मोर सीरियस टू लिसन द लेक्चर्स, दे आर मोर सीरियस अबाउट द स्टडीज़, जो भी पीछे कारण उसके हो। तो कहीं ना कहीं हमें अपने ऑब्जर्वेशन में ये देखना पड़ता है कि व्हाट इज़ देयर नॉर्मली एंड हाउ इट इज़ नॉट गोइंग टू बिहेव नॉर्मली। देयरफॉर योर हाइपोथेसिस शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन क्वेश्चंस
और ये किसी कम्युनिटी से ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आप देखते होते हैं कि भाई आप किसी भी एरिया में कोई बीमारी है ख़ास तौर से, दूसरे में नहीं है। आपको कुछ मतलब क्यों वहाँ पे क्यों नहीं है? पॉपुलेशन तो सेम है। किसी ने कहा नहीं वहाँ तो अगर वेक्टर बाउंड है मॉस्किटो वहाँ पे नहीं है, नहीं किसी ने मॉस्किटो वहाँ भी हैं। फिर क्या दिक्कत है? फिर जो है अगर बीमारी के लोग वहाँ पे नहीं है तो मॉस्किटो होने से क्या होगा? तो जो एक डिजीज़ का जो पैराडिज्म है उसको ध्यान में अगर हम रखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि व्हाई इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड एंड व्हाट कुड बी बेस्ड अपॉन दैट। सो एक किसी न किसी भी स्टडी में एक हाइपोथेसिस आपको जनरेट करनी होगी। फॉर दैट यू हैव टू सेट सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स? They will provide you information to claim your hypothesis। तो ऑब्जेक्टिव आपके वो पैरामीटर्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि अगर मैं यह कर लूँ, जैसे मैंने कहा लेटर टीबी के लिए मुझे कोई निकालनी है मॉलिक्यूल। आपका पहला ऑब्जेक्टिव है क्या टीबी के केसेस में लेटेंट टीबी करने के लिए कोई बायोमॉलिक्यूल ब्लड में, सीरम में ऐसा है जो मिलता है। आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। दूसरा है क्या कोई ऐसा है जो घटता है, ये सेट कर दिया। तीसरा है क्या नहीं कुछ और चीज़ें हैं, एक्स फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके 3 ऑब्जेक्टिव हो गए। तीनों को अगर आपने कोरिलेट किया, अब तीनों के जवाब अगर मिले तो उनके आधार पे जो आपकी हाइपोथेसिस थी कि हाँ यस ट्यूबरकुलोसिस लेटेंट टीबी इन कंडीशंस में डायग्नोसिस की जा सकती है। अगर वो पैरामीटर आपने उनका मिला तो आपको एक आधार मिल गया कि भाई हमें अपने ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ निकालना है, इस चीज़ को मॉनिटरिंग करनी है, ये देखना है। तो योर हाइपोथेसिस इज़ टू फाइंड आउट द लेटेंट टीबी डायग्नोस्टिक टूल। उसके लिए जो आपने एज्यूम किया कि एक्स फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट है, हमने ये एज्यूम करके रखा अपनी क्वेश्चंस में। हमको उसको पाने के लिए वी हैव पुट सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। नाउ अगर वो हमारे जो हाइपोथेसिस थी ऑब्जेक्टिव से मिल खा गया तो हम कंफर्म हो गए कि हाँ यस अगर ये मॉलिक्यूल सपोर्ट कर रहा है मुझे तो हमारी हाइपोथेसिस सही है कि मैं लेटेंट टीबी के डायग्नोसिस का टूल मैं बना सकता हूँ या मैं बनाने के लेवल पे हूँ या हमने उसमें इतनी आगे तक एडवांसमेंट कर ली है। तो ये एक ज़रूरी पहलू है जिस पर देखना है, उसमें उसी के हिसाब से तय होना। तो ये रिसर्च क्वेश्चन जो है आपके मन में जिस भी डिसिप्लिन में आनी चाहिए। एंड कब आएगा? बेस अपॉन नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन। आपको उसके लिए उस संबंध में जो भी अवेलेबल लिटरेचर है पढ़ना होगा, देखना होगा। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यस देयर इज़ अ गैप। नेक्स्ट प्लीज। सो जितने भी यहाँ पे डिसिप्लिन्स हैं सब एक दूसरे से इंटरमिंगल करते हैं। कोई बिल्कुल दीवार से एकदम बंधी हुई अलग नहीं है, कंपार्टमेंटलाइज नहीं है। दीज स्टडीज एट समवेयर दे कम टुगेदर। अब आप कहेंगे जैसे सपोज स्टडीज़ है बायोलॉजी की है, वो किन किन डायमेंशन को लेकर चलती है। स्टडीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। कभी भी जब भी कोई भी एजम्पशन आप लेते हैं तो सर्टेन कैटेगरी ऑफ द उनका जो लेवल ऑफ टेस्ट है या पावर ऑफ टेस्ट कहते हैं, पावर ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पहलू है आपकी स्टडीज़ में, वो भी देखना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए सूरत की आबादी जो है आपकी, मान लीजिए कितनी होगी यहाँ पे 60 लाख। अब आपको पता करना है कि भाई यहाँ पे कोई भी मान लीजिए सपोज कैंसर है, कैंसर थोड़ा सा अनकॉमन है, तो आपने 500 लोगों से पूछ लिया। अब वो आपने कह दिया कि नहीं भाई सूरत में तो ये इतना कैंसर है। इज नॉट फेयर बिकॉज 40, 50, 60 लाख की आबादी में क्या। तो एक सैम्पलिंग जो डिज़ाइनिंग होती है कि कितना सैम्पल हो, कहाँ से हो, कैसे हो, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा स्टडीज़ का जो एक्सपर्ट्स है, दे विल गाइड यू। तो जो भी आपने हाथ से डेवलप किया है उसको रीच करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि उसमें आपकी स्टडी में पार्टिसिपेशन कितने लोगों का हो, कैसे हो, किस ग्रुप का हो, कैसे हो, सिलेक्शन कैसे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टडीज़ का, वहाँ होना चाहिए। जैसे भी स्टडी हो, व्हाट एवर कुड बी।
चाहे वो एमएल बेस हो, ह्यूमन बेस हो, बट सैंपल साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सोशो इकोनॉमिक हो या पॉलिसी डिसीजन में हो, कहीं ना कहीं जो भी हमारा हेल्थ सिस्टम है, जैसे मैं अभी कह रहा था आप लोगों से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनकी अलग अलग विंग्स हैं, उनके यहाँ अलग अलग डिविजन्स सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को कैटरिंग करते हैं विद रिगार्ड टू द पॉलिसी। तो वो भी थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि अगर कुछ उस दिशा में काम करना है तो। आजकल तो बहुत इजी अवेलेबल है, आप नेट खोल लें, वेबसाइट पे चले जाएं, यू कैन फाइंड आउट दैट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्लीज। सो बेस अपॉन ऑल दोज assumptions, whatever you have gathered the information, now the question is something coming to your mind, यार मुझे कुछ करना है, कुछ लिखना है, कुछ प्रोजेक्ट करना है, कुछ ऐसा काम करना है जिस पे हमारा कुछ अपना एकेडमिक लाभ हो और कुछ साइंस में हम एक्स्ट्रा कर सकें। तो इसके अलग अलग पार्ट हैं। अब देखिए, अगर आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप लोगों को देखना चाहिए। इसमें जितने भी कंपोनेंट हैं रिसर्च प्रोटोकॉल के प्रपोजल्स के, उनमें सारी चीज़ें हैं। आप टाइटल बनाते हैं, देन कंटेंट क्या होना है, लिस्ट जो होती है वो ज़रूरी है, ग्लॉसरी भी जो है आपको देखना पड़ेगा कैसे कैसे, ताकि लोग जल्दी रेफर कर पाएँ। बैकग्राउंड है, हाइपोथेसिस है, ऑब्जेक्टिव है। एक चीज़ और होती है जो होती है नोवेलिटी, मतलब क्या कुछ आपके वर्क में ऐसा कुछ है जो लोगों ने नहीं किया है, या आपके परिप्रेक्ष्य में समथिंग न्यू। जनरली जो फंडिंग एजेंसी होती है पूछती है भाई तुम्हारे में नया क्या है, ये तो क्या हुआ, ये तो क्या हुआ है। तो एक ये भी होता है कि सब कुछ नया नहीं हो सकता ना, लेकिन आपके रिसर्च में जो कंपोनेंट है जिस पे आप एड्रेस करना चाहते हो, उस एंगल पे लोगों ने काम नहीं किया है, और करने के बाद में कहीं ना कहीं ऐसा कोई आउटकम आपके स्टडी का निकलेगा जो एक्स या वाई फैक्टर्स को या स्टडी को स्ट्रेंथन करेगा फ्यूचर वर्क के लिए, चाहे ड्रग डेवलपमेंट हो, डायग्नोसिस हो या वैक्सीन हो। तो ये अगर क्लियरली डिफाइंड है तो जो भी रीडर है, जो एक्सपर्ट्स है आपके फील्ड में, वो उस पर ज़रूर एक उसकी नज़र जाएगी कि नहीं भाई देखो ये एक्शन अभी तक कवर्ड नहीं है। जैसे आपने कहा भाई एक कोई प्लांट है, जैसे कुनेन का प्लांट करो, कुनेन की जो प्लांट है, मलेरिया की जो बार्क है, कुछ खास कंडीशन में आज भी जो है उससे बेहतर ड्रग अवेलेबल नहीं है। तो अब उसका इतना पुराना मॉलिक्यूल है वो, लेकिन आज उसका यूज़ होता है। लेकिन देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं हुए हैं या किसी दूसरे काम में काम करते थे हुए, तो उस प्लांट्स में ऐसा कोई पहलू आपने लिया जो उन डायमेंशंस को या उन आयाम को एक्सप्रेस करेगा जो अब तक किसी ने नहीं किया। ये आपका नोवेलिटी है, या किसने किया है बट इन कॉम्बिनेशन टू समथिंग नहीं किया जो आप करना चाहते हो। तो देयर कुड बी मल्टीपल एस्पेक्ट्स, वो आपके थॉट प्रोसेस में डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। तो ऑलवेज देयर इज ए स्कोप टू फाइंड समथिंग ऑफ नोबल नेचर इन योर प्रोटोकॉल जो पहले लोगों ने नहीं किया, अगर किया भी है तो उन पैरामीटर्स पे नहीं किया जिस पे आप करना चाहते हो। तो वो बहुत ज़रूरी यहाँ पे है। आपका जो है स्टडी डिज़ाइन है, ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे। जिसका एक बड़ा सा एरिया है सैम्पल साइज, जो मैंने अभी बताया था, जिक्र किया था। सैम्पलिंग फ्रेमवर्क भी होता है कि किस कंडीशन में सैंपल लेने हैं, कौन से पॉपुलेशन में करनी है, सिलेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट, एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया है। स्टडी साइट भी ले लीजिए आप। आपका जो टोटल मेथड होगा, लेबोरेटरी में क्या है, फील्ड में क्या है, सैंपल कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे, उसका एक आपको SOP तैयार करनी होगी अपने स्टडी डिज़ाइन की। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बोलते हैं हम लोग उसको। देन प्लान कैसे करेंगे, क्या उम्मीद लगाते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा आपकी स्टडी का, एक्सपेक्टेड आउटकम। डाटा रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, कैसे प्लानिंग होगी। इसमें इथिक्स अगर कोई इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल आपने ह्यूमन से सैंपल लेने हैं या बॉडी टिश्यू लेना है या कुछ और भी लेना है, कितना लेना है, इसकी इथिक्स कमेटी है जो सेफगार्ड करती है कि
किसी भी जनता के साथ में कोई अन्याय न हो, ऐसा कोई रिसर्च नहीं होना चाहिए जो उनको किसी तरह से हार्म करे। आफ्टर ऑल दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर नॉलेज, टू योर रिसर्च बाय कंट्रीब्यूटिंग आर गिविंग कंसेंट टू पार्टिसिपेट इन दैट स्टडी। तो वो भी ध्यान रखा जाए। तो वो कमेटी इंश्योर करती है कि आप क्या करेंगे। विदाउट अप्रूवल ऑफ दैट कमेटी आप कोई भी ह्यूमन पे रिसर्च नहीं कर सकते हो, ये ज़रूरी है। आपके इंस्टीट्यूट्स में क्या इथिक्स कमेटी कोई है? नहीं है। मेरे ख्याल में जो भी हमारे यहाँ पे सीनियर फैकल्टी हैं यू हैव, अच्छा है यूनिवर्सिटी, हाँ। तो उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं, जब कभी आप बाहर प्रपोजल देंगे तो वहाँ पे वो देखेंगे, अगर नहीं है तो उसको आप बना भी सकते हैं आप। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि बहुत से इंस्टीट्यूशन में हम क्लिनिकल रिसर्च में नहीं उतना जाते हैं, या वो हमारा स्ट्रेंथ नहीं होता है, तो कहीं नहीं भी होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छा ये आइडिया रहेगा कि जहाँ पे अगर है तो बहुत अच्छी बात है। उनके एक्सपर्ट्स हैं, दे विल गाइड यू कि कहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कंसर्न फॉर्म है, बाकी चीज़ें हैं, दे हैव टू प्रोवाइड इट। सो एक तरीके से उन सब चीज़ों को देखने के बाद में आप देखें बाकी जो डिफरेंट है, तो मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जो किसी भी अच्छे हेल्दी रिसर्च प्रोटोकॉल के लिए, प्रपोजल के लिए ज़रूरी है। बेस्ड अपॉन इन डेप्थ नॉलेज कि इसमें इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ये काम नहीं हुआ है, वो ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज। सो बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में उठते होंगे, एक कुछ सोचते रहते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा है, कैसे हो सकता है। सो देयर कुड बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आप कोई किताब पढ़ रहे थे, कुछ पेपर पढ़ रहे थे, अचानक आपको ध्यान आ गया, अरे ये बड़ा अच्छा है, ऐसा तो लोगों ने नहीं किया है, होना चाहिए। दिस कम फ्रॉम दैट। या आप समाज में गए, देखा यार एक इलाके में तो पूरे लोगों के पैर फूले हुए हैं, एलिफेंटेसिस, लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। आपने कहा भाई इसी इलाके में क्यों, यहाँ हमारे तो क्यों नहीं है। पता चला कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल से क्या फ़र्क पड़ेगा। नहीं, हमने पढ़ा लिटरेचर में कि जहाँ पे मॉस्किटो है, इसका क्यूलेस क्विंकी फेसेटस, ये उन एरियाज़ में रहता है, और जो इसका इन्फेक्शन का जो पैथोजन है, लार्वा इसका जो है, वो बॉडी में जब पसीना बहुत ज़्यादा रहता है तो उस पर काफ़ी देर तक सर्वाइव कर सकता है, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड वो बॉडी में कहीं टिश्यू में इंजरी करके वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में घुस सकता है। ड्राई एरियाज़ में ये नहीं है, इसीलिए कोस्टल एरिया में है। और ये जहाँ हमने देखा कम्युनिटी में यह है, तो कुछ क्वेश्चन आपके मन में आया कि यार रियली देयर इज समथिंग, इज देयर सम रिलेशन विद दैट। या आप ड्राई एरिया में गए जहाँ पे बिल्कुल ऐसा संभावना नहीं है, वहाँ पे देखा, फिर आपको सोचा भी ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वहाँ होना चाहिए, यहाँ पे कैसे है। तो दीज ऑब्जर्वेशंस इग्नाइट क्वेश्चन योर माइंड एज ए रिसर्चर कि यार क्या कारण है। उस कारण के लिए फिर आपने अपने एक हाइपोथेसिस बिल्डअप जो मैंने पहले बताया, तो बेस अपॉन सपोज कोई क्लिनिकल कोई डॉक्टर है, प्रैक्टिस कर रहा है, पता चला उसके यहाँ एक ही तरह के बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, 2, 4, 5 और 15-20 हो रहे हैं। देयर में समथिंग समवेयर आउटब्रेक है या कोई पैंडेमिक है। डायरिया के बहुत सारे केसेस आ गए। क्या हुआ भाई, किसी के शादी हुई थी, फूड पॉइजनिंग हो गया, और वो जो खाना खा के आए थे और वो सारे लेके गए, पता चला सुबह से लोगों को उल्टी दस्त हो रहे हैं। तो ये है उन चीज़ों से। तो मतलब समवेयर फ्रॉम वेयर यू डेवलप योर रिसर्च क्वेश्चन, ये सारे रिसोर्सेज हैं, वहाँ से आपको मिलेगा। डिग्री लेने के लिए पीएचडी नहीं करना है, आई टेल यू आप। पीएचडी करना कि कुछ हमारे मन में कुछ है जो मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ रिसर्च क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत अच्छे हों, मीडियम के हों या बेसिक के हों, नो मैटर, बट कुछ रिसर्च क्वेश्चन मन में आना चाहिए। इसलिए हमारे प्रोफेसर क्या कहते थे, जब हमको बुला दिया, हम जब रिसर्च हमने किया CDRI लखनऊ में, तो बोले अच्छा ठीक आ गए सर, टॉपिक बता दीजिए। नहीं, जाओ लाइब्रेरी जाओ पढ़ो। 6 महीने तक दौड़ाया लाइब्रेरी, देखो पढ़ो क्या कुछ सीखो, मतलब टॉपिक कैसे चुनना है। हमारे प्रोफेसर ने नहीं कहा कि टाइटल लिखा दे रहा हूँ इसे पे काम शुरू कर दो, नहीं। तो कहीं ना कहीं वो लर्निंग फेज होता है आपका, तो आप सीखते हो, दूसरों को पढ़ते हो, दूसरों से बात करते हो, ट्रेड करते हो, तो लगता नहीं हाँ ये कुछ हम काम करने की चीज़ है क्या। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर टू डेवलप योर रिसर्च प्रोटोकॉल बेस्ड अपॉन सर्टेन इम्पॉर्टेंट कॉन्क्रीट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट प्लीज।
अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो तय करते हैं किन एरिया, जैसे मैंने बताया आपको ब्रीफ किया कि किन किन एरियाज में कैसे कैसे हैं, हाउ यू विल, और उसके लिए कितना कुछ लिटरेचर अवेलेबल है हमारे पब्लिक डोमेन में या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, रिसर्च ग्रुप्स में बाकी हैं, ये भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। सारी चीज़ें आपने कर लिया। जैसा मैंने कहा ना, एक होता है फिजिबिलिटी। यूनिवर्सिटी के लेवल पे मान लीजिए साधन हमारे सीमित हैं, तो हमें ये भी देखना है कि क्या ये मैं कर सकता हूँ, या फंडिंग जैसे हमें जितना पैसा देगी कि कहीं पे हम आउटसोर्सिंग करवा सकते हैं, कोई सैंपल की एनालिसिस है, कोई हाई थ्रूपुट मशीन की ज़रूरत है, जीन सिक्वेंसर की ज़रूरत है, तो हमारे पास मान लीजिए नहीं है, तो कहाँ से होगा, कैसे होगा, कितना पैसा आएगा। तो ये सारी चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं अपने रिसर्च प्रोटोकॉल में लेना होगा, देन हम तब सेफ रहेंगे। वरना पीएचडी के एक ऐसे मुकाम पे पहुंच के अटक गए, यार अभी तो काम हो नहीं सकता, हमारे पास तो है ही नहीं, सुविधाएं नहीं है, और जिन प्रोफेसर से मैंने कहा था वहाँ भी कॉपरेशन नहीं मिल रहा है। बच्चे को भी जल्दी है, आपका गाइड भी चाहता है कि जल्दी से काम हो जाए, तो कम से कम आगे बढ़ें हम। तो ऐसे बहुत अच्छे आइडियाज़ तो हैं, बट अगर फिजिबल नहीं है तो नहीं लेना है, बिकॉज आपका एकेडमिक लाइन टाइम बाउंड है, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज। टॉपिक वही जो मैंने बताया है अब। हाँ, टाइम है, क्या काम उस टाइम लिमिट में हम कर पाएंगे? काम बहुत अच्छा है, मगर इतना ह्यूज नेचर का है कि आपके बस का नहीं है कि हम 2 साल 3 साल 4 साल में ख़त्म कर ले जाएं। तो उतने बड़े डायमेंशन के टॉपिक या अप्रोच या ऑब्जेक्टिव नहीं लेने हैं जो फिजिबल हो, बट उसमें कुछ ऐसा हो जो रिसर्च के लिए आपके माइंड को इग्नाइट करे और आप उसको पैशनेटली करो। नेक्स्ट प्लीज। सो इसमें कुछ एक अलग अलग पैटर्न है। एक है बनाया, किसने कहा फाइनल क्राइटेरिया, किसने कहा पिकॉल मेथड है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखा, तो इसमें जो फाइनल बोलता है वो कहता है, देखो भाई पहली बात सबसे क्या बोलता है, फिजिबिलिटी देख लीजिए आप। बहुत अच्छा आपका थॉट है, लेकिन जहाँ पे फिजिबल नहीं तो बेकार है, नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट यू थी व्हाट आर यू थिंकिंग, इज इट अवेलेबल विद इन योर रिसोर्सेज यू कैन डू। तो एडिक्वेट नंबर सब्जेक्ट, ऐसा कोई पॉपुलेशन है, आपने ऐसी कोई डिजीज चुन ली है जो पता चला कि इंडिया में 5 ही है, ऐसी कोई रेयर डिजीज़ है, जैसे एबोला मान लीजिए आ गया अभी, समझा, पहले था, या मंकी पॉक्स है। अब मंकी पॉक्स के अगर 5 केस भी नहीं मिलेंगे तो आप कहाँ रिसर्च करोगे? आप बहुत नॉवल है, नया है, बहुत कुछ है, किया जा सकता है। हालांकि ये पुराना वायरस है, ऐसा नहीं कि नया है वो, बट उसके कुछ अलग अलग फेसेट्स हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो फिजिबिलिटी इज़ आल्सो, सैंपल मिलना का कितना मिलेगा ये भी ज़रूरी है, अफोर्ड कर सकते हैं टाइम एंड मनी के लिए, ये भी ज़रूरी है, और इंटरेस्टिंग है क्या, मतलब कुछ ना कुछ उस क्वेश्चंस में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको उससे कनेक्ट करके रखे। नोबिलिटी मैंने बताया ही आपके साथ, वो उसी का पार्ट है। इथिक्स इश्यूज़ हैं कि मतलब हमारे पास समाज में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और रिलेवेंस है कि नहीं उसकी, वही रिलेवेंस के मीन्स उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, आज के ज़माने की चीज़ है जिसमें हमारा फोकस है। हेल्थ केयर हमारा या हमारा गवर्नमेंट जिसको चाहती है कि भाई इसमें आप कुछ करके दो मुझे, क्या उससे मैच करता है, तो ये सारी चीज़ें तय करती हैं उन चीज़ों को चुनने में अल्टीमेटली। नेक्स्ट प्लीज। अब दूसरा जो है वो बोलता है कि ये भी एक तरीका है, इससे भी आपने रिसर्च प्रोटोकॉल को ले सकते हैं। यह है इसमें पॉपुलेशन को पहले देख लीजिए आप, अगर करना है क्या पॉसिबल है क्या उस पर्टिकुलर एरिया में उस डिजीज़ को लेकर के, इंटरवेंशन अगर करना है तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, कंपेयर भी करना है आपको दूसरे से अपने एफिकेसी को देखने के लिए, आउटकम दोनों जगह पे है और टाइम फ्रेम दोनों जगह पे है। तो कहीं ना कहीं आपका रिसर्च ऐसा हो जिसमें आप अपने टाइम बाउंड कैरियर में उसको आके ले जा पाएँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव आप क्लियर हों कि उससे मुझे क्या करना है, एंड वो टाइम प्लान में हो जाए विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट प्लीज। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने सही टॉपिक का चुनाव किया, जितना पीछे मैंने बताया है, तो समझ लो कि आधा काम आपका हो गया। मतलब हर लेवल पे आपने पैरामीटर को चेक कर लिया है कि यार ये ऐसा करेंगे तो होगा,
तो आपके पास उसका आंसर है, मतलब यू आर कॉन्फिडेंट कि हम ये टाइम फ्रेम में कर पाएंगे। कोई भी इमरजेंसी तो अलग बात है, बट नॉर्मल कोर्स में अगर आपका प्लान ऐसा है जिसकी फिजिबिलिटी है, रिसोर्सेज हैं, तो तकरीबन समझिए कि आपका आधा काम तो हो गया। आधा काम है जो आपको करना है, जो बेस है आपके ऑब्जर्वेशन से, उनमें जो की क्वेश्चन जो है आपको उसको ध्यान में रख करके आप अपने प्रोटोकॉल को डेवलप कर लीजिए। नेक्स्ट प्लीज। अब वही जो मैंने पहले बताया है उसी का पार्ट है, नल हाइपोथेसिस क्या है ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट प्लीज। सो ऑब्जेक्टिव अगर आपको लिखना है तो बहुत सारे हैं, मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कुछ ये भी डालना है। एक अच्छी डिश बनानी है, मान लीजिए सपोज कोई भी रेसिपी है, तो किस में क्या हो, आपका जो आउटकम है वो है आपका मेन हाइपोथेसिस के। भाई मुझे मेन हमारा ऑब्जेक्टिव ये मिलना चाहिए, गोल कहना चाहिए, मिलना चाहिए। तो उसके पार्ट्स हैं। फ्रेमिंग द ऑब्जेक्टिव है, आप कैसे बनाएंगे, एमर्ज फ्रॉम द रिसर्च क्वेश्चन से निकल के आया, और इंडिकेट द स्पेसिफिक अप्रोच टुवर्ड्स आंसरिंग द स्टडी क्वेश्चन, प्रिसाइज एंड मेजरेबल। ये इनकी चीज़ें हैं जिसमें जो भी आप करना चाहते हैं उनके जो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव जो उनके पैरामीटर्स वो आप कर पाएँ, ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज। इसमें क्या है कि आप बनाएं तो क्या करें क्या ना करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब आप बनाएं तो एक होता है जैसा कितने का है कि एक पार्ट है कि जो बहुत ही ब्रॉड है, एसेस, स्टडी, इन्वेस्टिगेट, डिस्कवर, एक्सप्लेन, इवेल्युएट, इनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल वो आउट ऑफ कॉन्टेस्ट हैं, बट अवॉइड करें। क्या होना चाहिए, टू फाइंड आउट। अब करते हैं तो क्या फिर हमारा तय हो गया कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, कहीं ना कहीं आपकी ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके सामने आ गई। सो उसमें क्या है कि देन यू विल बी फ्रेम योर हाइपोथेसिस और द रिसर्च क्वेश्चन वेरी फोकस्ड वे विद, तो वो ज़रा वेग नहीं होगी, मेजरेबल होना चाहिए, क्वांटिफाई कर पाएँ। तो उसमें ये होता है कि आप या तो क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं अगर मान लीजिए, तो फिर उसका दूसरा पहलू है, बट कहीं ना कहीं इसका जो टोटल जो मतलब उद्देश्य है वो यही है कि आपकी स्टडी कहीं ना कहीं फोकस होनी चाहिए, हटी नहीं चाहिए, ब्रॉड नहीं होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। सो एक चीज़ और होता है, आप ग्रुप में चलते हो तो लोग हाथ बटाते हैं तो काम जल्दी आसान हो जाता है। अकेले चलोगे तो फिर वो मुश्किल है, कल को कहीं ज़रूरत पड़ती है, तो कभी ना कभी टीम वर्क जरूरत है। इसलिए एक अच्छा रिसर्चर वो होता है जो अपना एक अच्छा ग्रुप बनाता है, रिसर्च टीम। फैकल्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ इन पर्टिकुलर। अगर मेरा स्ट्रेंथ माइक्रोबायोलॉजी में है और किसी का एपिडेमियोलॉजी में है, मेरा ऐसा कोई स्टडी है जहाँ पे दोनों कंपोनेंट की ज़रूरत है, तो हमें दोनों को साथ में कि भाई ये देखो ये हमारा काम है, मैं ये करूँगा, रेस्ट काम तुम्हारा। तो ये टीम बहुत ज़रूरी होती है। टीम वर्क में अगर आप कोई चीज़ लेते हो तो आपके पब्लिकेशन भी ज़्यादा निकलेंगे, उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हमारा अगर मेन कंट्री तो मैं फर्स्ट ऑथर में रहूँगा, आपका है तो आप रहिएगा। सीनियर प्रोफेसर क्या होता है वो करस्पॉन्डिंग ऑथर में रहेंगे। तो ये एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं ताकि हर आदमी को उसके कंट्रीब्यूशन का वहाँ पे योगदान मिले उसको। बहुत सारे इथिकल इश्यूज़ हैं पब्लिकेशन में, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा अभी क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसी में हम लोग पूरा दिन चला जाएगा। तो मैंने कहा मतलब यहाँ पर टीम बनाएं, आप अच्छा टीम बनाएं और चुनाव करते वक्त ऐसा ग्रुप बनाएं जैसे हमारी टीम है। मान लीजिए हमने अभी एक लेप्रोसी का प्रोजेक्ट लिया है पूरे इंडिया में, 10 राज्य 35 जिले, करीब 12.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो। हमने अपने जालमा से साइंटिस्ट को ग्रुप कर दिया है कि आपकी ज़िम्मेदारी ये स्टेट है, वहाँ का जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी ज़िम्मेदारी ये है, उनके साथ काम करना है, प्रोटोकॉल डेवलप है, उससे डेविएट नहीं होना है। क्योंकि एक आदमी अगर सब जगह जाएगा तो खिचड़ी बन जाएगी होने के बाद। इसीलिए फोकस में करके आपको ग्रुप तय करना है। बहुत अच्छा रिसर्च हमारे यूनिवर्सिटी से भी निकल के आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अगर आप एक अच्छा ग्रुप बनाएं अपने अपने डोमेन को लेते हुए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वर्क नॉट ओनली बेस्ड अपॉन द लेबोरेटरी वर्क। आई टेल यू, पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी
सोशो बिहेवियरल साइंस लेकर के भी आप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, जहाँ पे एडवांस टूल की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रोटोकॉल की, रिसर्च मेथड की और प्रोजेक्ट की। उसके लिए भी फंडिंग के लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं के लिए। सो यहाँ पे हमेशा ज़रूरत है। फंडिंग भी जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी टीम में जब वहाँ बनाएंगे रिसर्च क्वेश्चन तो लोग पढ़ते हैं भैया कौन करेगा, मैं ही करूँगा। मान लो मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, ये कौन करेगा पार्ट इम्यूनोलॉजी वाला, मैं ही करूँगा। तो सोचते हैं यार ये तो सब यही बंदा करेगा, इसका मतलब इसका बस का है नहीं। तो नहीं भाई ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है, चलो हटा दो उसको। जब आपकी टीम है, अब आजकल तो हम जब रिव्यू कराते हैं हेडक्वार्टर से, तो जब हमारी प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी बैठती है, हम लोग हेड करते हैं हेडक्वार्टर से, तो प्रेजेंटर आते हैं, हम ही बोलते हैं कि जितने भी आपके पार्टनर सबको साथ में लेके आओ, बैठो, तो जो उनसे क्वेश्चन है वो उसका उत्तर दें, सो दैट द अथॉरिटी फील्स नहीं इनकी टीम बैलेंस है, दे विल बी एबल टू एग्जीक्यूट। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं होना चाहिए, अच्छा टीम बनाना। नेक्स्ट प्लीज। अब ये सब चीज़ें तो एक बैकग्राउंड में है, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका प्रोटोकॉल है वो कैसे बनेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें। एक प्लानिंग का फेज़ है, आपका किसी की राइटिंग बड़ी अच्छी है, कैपेबिलिटी है, राइट कर सकता है, लिख सकता है, उन सब चीज़ों को देख के कर सकते हैं आप। अब प्रोटोकॉल में क्या क्या कंपोनेंट है मैंने पहले बताया है, आई एम नॉट गोइंग डिटेल। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिनिकल ट्रायल के लिए एक रजिस्ट्रेशन भी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारी ICMR देखती है, ये है रजिस्ट्रेशन फॉर क्लिनिकल रिसर्च इन इंडिया। ये मैंडेटरी है, कोई भी बॉडी अगर रिसर्च करना चाहती है ह्यूमन पार्टिसिपेंट पे, वहाँ पर रजिस्ट्री करना होगा, उसके अप्रूवल के बाद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। टाइटल पेज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमेशा टाइटल पेज आपका कंसाइज हो, शॉर्ट फॉर्म नहीं होने चाहिए, इंफॉर्मेटिव हो, और जो स्टडी है उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अब आपने लिखा आई स्टडी इन गुजरात, मान लीजिए टाइटल फॉर सो एंड सो, अंदर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी लिख रखा है और वेस्ट बंगाल भी जुड़ा हुआ है कि वहाँ सैंपल लेंगे, यहाँ सैंपल लेंगे। जब आपके टाइटल ही गुजरात तक कन्फाइंड है तो आप बाकी चीज़ें क्यों डाल रहे हो। मतलब टाइटल शुड बी एक्सप्रेसिव एंड उसमें ऐसी कोई चीज़ ना हो जो आपके इंटरनल में उससे कॉन्फ्लिक्ट करता हो। ये बहुत ज़रूरी है। जब चुनाव करें जो उद्देश्य है उसे मिलते रहें, छोटा लिखें, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखें। बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ऑलरेडी हमने बात कर लिया। आप नेक्स्ट चलें। ये भी वहाँ दिया हुआ था, उसको उन्होंने क्या क्या है एक डिटेल में फिर चार्ट में बना दिया है। एक और चीज़ होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एग्जीक्यूटिव समरी होती है उस चीज़ की। मतलब जो रिव्यूअर्स होता है वो सब कुछ नहीं पढ़ता है, वो उल्टा पढ़ता है। हम लोग उल्टा पढ़ते हैं, जो थीसिस आपने लिखते नहीं, जितनी भी थीसिस हम लोग जब देखते हैं तो हम पीछे शुरू करते हैं, हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव समरी में क्या लिखा है बंदे ने, मतलब वो जिस्ट जो इसकी है थीसिस की क्या है, उसके पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है कि यार कहाँ पे क्या चीज़ देखना है मुझे। देन उन चैप्टर को हम चिन्हित करके वी विल सी दैट। तो ये जो समरी है बड़ी स्मार्ट होनी चाहिए, उसमें ये दिखना चाहिए कि भाई आपका जो ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल फोकस है, गोल ओरिएंटेड है, और ये है जिस पे मॉडर्न में या कमिंग प्रेजेंट सिचुएशन में रिसर्च की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाकी चीज़ें हैं, नेक्स्ट जाइए। बता चुका हूँ पहले भी, भाई वही रिपीट किया है, आगे बढ़ जाइए। अब ये देखिए, इसमें भी एक चीज़ है जो आप लोगों की जानकारी की ज़रूरत है, जो होती है टाइप ऑफ स्टडी डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च क्वेश्चन। मैं 2-3 बताऊंगा। जैसे है ऑब्जर्वेशनल है, एक्सपेरिमेंटल है, आपने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके करनी है, फील्ड में बेस है, कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करनी है, डिपेंड करता है दोनों में। डिस्क्रिप्टिव होती है, एनालिटिकल है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है, नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है। मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर स्टडी प्रोटोकॉल यू कैन कैटेगराइज योर रिसर्च इनटू वेरियस। 2-3 चीज़ें हैं। कुछ स्टडी ऐसे होती हैं जैसे आपने एक समय में एक चीज़ कर लिया, वो स्टडी वहीं पे फिनिश, उसका कोई फर्दर वो जो है फॉलो अप नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडी।
जैसे एक पेड़ है, आपने यूं काट दिया, फिर यहाँ देखा क्या है, जाइलम है, कैम्बियम है, फ्लोएम है, ये है, दैट्स ऑल, हो गया। अब एक अगर आपने यूं काटा तो जो उसका ग्रोथ है, मतलब फॉलोअप है, जो उसका रिकॉर्ड है, मतलब इफ यू फॉलो समथिंग फ्रॉम द इनिशियल टू द आउटकम, तो वो कोहॉर्ट स्टडी कहलाती है, फॉलोअप कहलाती है। उसमें दो हैं, कुछ क्या करते हैं डिजीज, जैसे मान लीजिए एक एरिया है जहाँ से मान लीजिए कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं, तो एक है कि आप देखें कि कितने कैंसर केस निकले पिछले 5 साल में, मुश्किल काम है। तो क्या कहता है, ये कहलाती है प्रॉस्पेक्टिव स्टडी, मतलब गो फॉरवर्ड। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब फ्रॉम प्रेजेंट टू गो बैकवर्ड। तो उस आदमी से इंटरव्यू करके उसके पीछे किस, भाई 2 साल पहले क्या हुआ था, 3 साल पहले तुम्हारी क्या हालत थी। तो हम कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है नॉलेज की, वो हम बैक जाके पूछते हैं उससे, क्योंकि उतना 10 साल में कोई डिजीज मान लीजिए डेवलप हो रही है, तो मुझे 10 साल का टाइम चाहिए, तो हमारे पास है नहीं। सो देयर इज अनदर वे ऑफ मेथड ऑफ डूइंग दैट, यू गो फॉर रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, पुट द प्रेजेंट केस एंड गो बैकवर्ड बाय गेटिंग द इंफॉर्मेशन व्हाट इज अवेलेबल विद द पेशेंट और द पार्टिसिपेंट्स। वो डिपेंड करता है, दिस इज नॉर्मली यूज इन द रेयर डिजीजेज। सो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे डिपेंड करेगा आपका कितना। नेक्स्ट प्लीज। अब ये भी है कि हाउ वी कैन रीच टू, नॉर्मली क्या होता है आजकल आपने होगा कि सिस्टमेटिक रिव्यू का भी एक पैटर्न बहुत है। कुछ अच्छे रिसर्चर होते हैं जो बड़े ज्ञानी होते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो उन्हें कहा भाई ट्यूबरक्लोसिस पे अब तक कितनी दवाइयाँ बनी हैं और कितने का ट्रायल हुआ है, पबमेड में गए, सेंट्रल में निकाला 500 स्टडी है। कुछ उसने एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया लगाया, जो उसके फ्रेम में नहीं बैठे उनको बाहर कर दिया, 100 पे आ गया, फिर कुछ और फिल्टर लगा दिया, 50 आ गया। 50 स्टडी में उसने देखा कि इनमें दोनों में सिमिलरिटी सारे में क्या है, ये है। उसके बेसिस पे उसने एक अपनी हाइपोथेसिस जनरेट कर दी और ये बताया कि बाय एंड लार्ज इतनी स्टडीज़ जिन्होंने इतने स्टूडेंट क्राइटेरिया को फॉलो किया था, उनका आउटकम ये है। देयरफॉर इन फ्यूचर ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या ड्रग जो भी है या वैक्सीन है, इसका एप्लीकेशन है और यह होना चाहिए। और ऐसे पेपर जो है अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर यानी अच्छे गुड इंटरनेशनल जर्नल छपते हैं। अब उसने अपना कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके अंदर गट्स है कि वो उस चीज़ों को एनालाइज कर ले, विजुलाइज कर ले। डाटा बहुत है, इन्फॉर्मेशन बहुत है, उसको एसिमुलेट करना, डाइजेस्ट करना, उसके कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकालना, ये साइंटिस्ट या किसी भी इंटेलेक्चुअल के दिमाग के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। तो वो एक है। तो इन सब चीज़ों का हम देखें तो अल्टीमेटली पहुंचता वहीं पे जा करके है। नेक्स्ट प्लीज। जो आपको मैंने बताया था वही चीज़ें हैं ये कुछ। हाँ, एक चीज़ और होता है जो बड़ा आसान है, करना चाहिए, केस रिपोर्ट। जैसे कोई बीमारी या कोई सी चीज़ है जो लगता है कि सोसाइटी में अनकॉमन है, यार ऐसे तो होता नहीं है, तो उन चीज़ों को मेडिकल डॉक्टर्स, क्लिनिशियंस, प्रोफेशनल्स उनका पूरी केस स्टडी करते हैं, रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो उनका पब्लिशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे हमारे पास मैम ने करीब 3-4 केस रिपोर्ट पब्लिश किया है। एक फ्लाई होती है जो एग लेइंग आँख में करती है जानवरों के, उसे बोलते हैं जेट फ्लाई। तो वो क्या करती है, वो जहाँ पे काउज होते हैं बहुत सारे, जहाँ पे हमारे चरागाह होते हैं, रहते हैं, वो तो मूव करते हैं वहाँ पे। जो यहाँ पे आँख से उनके सेक्रेशन निकलता है, पस वगैरह निकलता है ना, वो कीचड़ वगैरह निकलता है, उस पर वो खाती है वो, और वो जेट से करती है। वो एग लेइंग करेगी तो ऐसे किया उसने, और वो आँख की तरफ जहाँ उसने मारा तो 2-4 वहाँ पे अंडे उसके जो है आँख के अंदर चले गए। उसमें एक लार्वा निकलता है आफ्टर सम टाइम, वो आँख में पूरा घूमता है। 3-4 बच्चों में आसाम में जो है एक डॉक्टर ने देखा, तो एक दिन मेरी बात हुई तो बोला, डॉक्टर साहब ये बताओ यार, ये आँख में ये लार्वे कैसे आ गए? तो हमने कहा आप सैंपल दिखाइए। तो उसने वीडियो क्लिपिंग बना के रखी थी, मुझे दिखाया। तो हमने कहा यार ये तो पैरासाइट है। बोला पैरासाइट कैसे यहाँ कैसे पहुँच गया? तो हमने उसको दिखाया, फिर उसकी पूरी स्टडी की, उसकी माइक्रोस्कोपी करवाई, उसको पब्लिश कराया। एक वर्म होता है
जो उसके अंदर में कुछ करता नहीं, हार्मलेस है वो, लेकिन अगर वो रह जाए तो, क्योंकि आँख तो बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, डैमेज भी कर सकता है। तो बिल्कुल यानी एक जैसे पिन वर्म होते हैं ऐसे साइज का होता है वो, बड़ा उसका ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है अगर आप फोटोग्राफी करें तो। कहने का मतलब है ये एक ऑब्जर्वेशन था, एक केस मिला उसने, तो ये उसने उसको लिया, पढ़ गया। पूरे दुनिया में बहुत सारे केसेस हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरा ख्याल में शायद ऐसे 20-25 रिपोर्ट्स होंगे। थैलेसिया का नाम है, थैलेसिया कैलिपेडा, जो एक राउंड वर्म है। तो ये है, जैसे कोई और इन्फेक्शन मिल गया किसी को, तो इससे बहुत सारे केस सीरीज लोग पब्लिश करते हैं जो हमारे क्लिनिशियंस होते हैं। आसान है, एक केस को स्टडी कर लिया, हो गया। नेक्स्ट प्लीज। अभी आता केस सीरीज, मतलब क्या होता है कि उसी कंटिन्यूएशन में कुछ ना कुछ फाइंडिंग मिलती रहती है, लोग आगे बढ़ाते रहते हैं। देयर आर वेरी गुड जर्नल्स जो छापते हैं, इसमें न्यू इंग्लैंड जर्नल भी छापता है केस सीरीज, बहुत हाई इम्पैक्ट जर्नल वो भी है, डिपेंड करता है अपॉन दैट। नेक्स्ट प्लीज। अब इसके बहुत सारे ग्रुप बना दिए हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी के रूप हैं, जिसमें एक 2x2 टेबल हम लगाते हैं, हम उसका इफेक्ट भी देखते हैं कैसा कितना है, लाइक दैट। ये उसके दिया हुआ क्रॉस सेक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, कितने एक्सपोज हुए कितने नहीं हुए, तो उसके आधार पर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो उसके आधार पर आप जो है पेपर छापते हैं क्रॉस सेक्शन स्टडी करके। अभी जो हमारा सर्वे हुआ फाइलेरिया इसका टीवी का, पूरे नेशन में बता रहा था मॉर्निंग में, उसको बहुत ही अच्छे जर्नल में छापा गया। खाली उसका 2 ही इम्पैक्ट था, कितना टीवी का प्रेजेंट सिनेरियो है और क्या क्या इम्पोर्टेंट एरियाज है जिसमें हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। चूँकि इतना बड़ा पॉपुलेशन को कवर किया है, कम से कम उसमें हमारे ख्याल में 150 आथर होंगे, इसमें 150 से कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे, इतनी बड़ी स्टडी है वो। तो कहने का मतलब है कि ये डिपेंड करता है ग्रुप में कितना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने कहा था, एक आउटकम से उल्टा जाते हैं और एक एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जाते हैं, मैंने बताया था अभी, वही चीज़ मैंने दिखाया यहाँ पे। अगेन देयर आर वेरियस मेथड ऑफ दैट। नेक्स्ट, ये वही चीज़ है। आप यहाँ पे इन्होंने स्मोकिंग इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल फॉर दी स्टडी। उन्होंने एक केस कंट्रोल स्टडी किया कि कितने में सिगरेट अगर हम मानते हैं, मान लीजिए गुटखा कह लीजिए आप, गुटखा ओरल कैंसर का, माउथ कैंसर का एक जिम्मेदार फैक्टर है मान लीजिए, तो कितने ने गुटखा खाया तो कितने को हुआ, और कितने ने 2 ग्रुप बनाते हैं। गांव में चले जाओ, अरे वो सिगरेट तो मेरा दादा पीता था, वो पूरा ज़िंदगी सिगरेट पिया, उससे कुछ नहीं हुआ, सिगरेट पीने से कैंसर नहीं होता। ऐसे एग्जाम्पल दे देगा, आपकी साइंस पूरी फेल हो जाएगी वहाँ। समझा। अब वो ये नहीं कहते थे कि देखो आपके दादा को नहीं हुआ, अच्छी बात है, मगर आपके दादाजी जैसे 100 पीने वालों में से 40 को हो गया, ये उसका अजम्पशन नहीं है। ही इज़ नॉट एबल टू कम्प्रीहेंड कि नहीं भाई, अगर 100 पीने वाले सिगरेट को ले लें हम, तो इसमें से 40 को हो सकता है। वो एक का एग्जाम्पल देगा और आपको सोचेगा कि आप बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, चलो कुछ काम कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब जो अजम्पशंस होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनका जो है ऐसे पॉसिबल नहीं है। These are the methods by which you can, केस कंट्रोल स्टडी में होता है। एक केस को देखा, एक्सपोजर हुआ, दूसरे का एक्सपोजर नहीं है, उनका आउटकम क्या है। नेक्स्ट प्लीज। तो देयर आर वेराइटीज ऑफ स्टडीज़, ये हमारे स्टडीज तय करते हैं कि हमें इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट प्लीज। ये भी उसी का पार्ट है, ये भी कोहॉर्ट का है, थोड़ा सा एडवांस है, मैं जाऊँगा नहीं, इनका ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, आप देख सकते हैं। एक्सपोज नॉन एक्सपोज कितने हैं ये भी देख लीजिए। इज ए कोहॉर्ट स्टडी ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव? नहीं, जिसका आंसर है उन्होंने उल्टा दिखाया होगा यहाँ पे। इंटरवेंशन भाई एक ऐसी स्टडी है जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी बड़ा अच्छा योगदान कर सकती है, क्योंकि इस स्टडी में हमारे पास में इंटरवेंशन के फैक्टर्स यानी पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं। हम चाहते हैं कि उनको हम इस्तेमाल करके कम्युनिटी पे ले जाएं। यूनिवर्सिटी का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, बच्चे हैं, ग्रुप हैं, प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, रिसर्चर्स हैं, जिसमें पीएचडी के लिए भी वहाँ पे उनका टॉपिक भी मिल सकता है और पेपर भी छप सकते हैं और वो
वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों पे मैं समझता हूँ कि ये लिया जा सकता है। देयर कुड बी लॉट ऑफ स्टडीज़ डन, इस पे कभी डिटेल में चर्चा की जा सकती है। नेक्स्ट प्लीज। ये भी डिटेल्स में है, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल अगेन, दिस इज द वन। इकोलॉजिकल पार्ट में भी लोग स्टडी करते हैं, देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, देयर कुड बी अनदर इकोसिस्टम को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो आप ये भी देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास में स्टडीज़ हैं उनको प्लॉटिंग कैसे करें, हाउ वी कैन मेक द ग्राफ और द चार्ट लाइक दैट। प्लॉटिंग डाटा को कैसे, क्वालिटेटिव का भी आगे मान लीजिए, सपोज अगर आप डाटाबेस नहीं करना चाहते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं है, उसके बहुत सारे हैं। क्वेश्चन पेपर सर्वे वहाँ होता है, जैसे आप इंटरव्यू करते हो मान लीजिए, एक कॉमन तरीका है। तो ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा हाईटेक लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाई थॉट की ऐसी चीज़ों में भी आप गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं, मगर एक अच्छी टीम होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे समझते हैं यूनिवर्सिटी में नहीं यार, लेबोरेटरी में अगर कुछ नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे काम। ये भी एक डायमेंशन है रिसर्च का, ऐसा नहीं है। अगर आपका परसेप्शन है तो लेबोरेटरी के साथ साथ ऐसे भी स्टडीज़ को लिया जा सकता है जहाँ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक अच्छे रिसर्च क्वेश्चन को आप एड्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। सैम्पलिंग में बता चुका हूँ, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर, अलग अलग तरीके हैं। आगे चलो। अब यह जैसे हमारा ये होता है ना कंसेंसस, हमारा जो है सेंसस डाटा हमारा है, वहाँ से ले लिया, किसी गांव का ले लिया, विलेज का लिया, तो एक पार्ट है कि हम कैसे डिज़ाइनिंग करें, वो हमको हेल्प करते हैं उन चीज़ों में। नेक्स्ट चलिए आगे, सब जरा सा बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल हो गया है। एक चीज़ और, हाँ यही मिलेगी। आप लोगों ने किसी ने रैंडम टेबल देखा है? आपके एमएससी के किताब के पीछे कभी कभी एक टेबल लग के आती थी, रैंडम टेबल। लोग उसका मतलब नहीं समझते थे। मतलब चुनाव करना होता है उसमें कि अगर किसी पॉपुलेशन, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं तो कितने गुण गा रहे हैं। जैसे आपने कभी कभी वो गेम देखा है, वो हाउजी जो खेलते हैं, हाँ, एक पूरे डब्बे में बॉल रख लेंगे, नंबर निकलेगा, वो किसका निकलेगा पता नहीं है। तो ये रैंडम का मतलब वही होता है कि जब आप, जैसे मान लीजिए सपोज मुझे एक कोई 10 पैकेट इस पूरे ग्रुप में देना है, जब बैठा हुआ है, तो मैं किसको दूँ? सामने वाले को। तो बोलेंगे सर तो फैकल्टी को दे दिया, हमको दिया ही नहीं, हमारे इग्नोर कर दिया। और किसी ने कहा भाई नहीं, हमने फैकल्टी को भी दिया, बच्चों को भी दिया। तो पीछे वाला बोलेगा हमको तो दिया ही नहीं, हमारे तो ग्रुप में इधर आया ही नहीं। तो ये टेबल तय करता है कि इस पूरे एरिया में अगर मैं 10 सैंपल लूँ, अगर कोई मैं मुझे बोलूँ, मैं अभी एक ऐसा प्लान कर सकता हूँ कि कोई ये नहीं कह सकता कि उसमें हर आदमी के इक्वल चांस होने की प्रोबेबिलिटी होती है। दिस इज सैम्पलिंग डिज़ाइन। किसी भी बड़ी पॉपुलेशन में जब आप ऐसा काम करते हो तो कोशिश ये रहे कि भाई हर एरिया का लोग कोई ना कोई 1-2 करके शामिल हो, ताकि जब कुछ आपका आउटकम हो तो आप उस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सको। दैट या बायस नहीं होना चाहिए। दैट्स राइट। नेक्स्ट प्लीज। उसके तरीके हैं जो आप टेबल में लिखा है। आज कंप्यूटर में आ गया सिस्टम। कंप्यूटर में आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक जो है ईपी इन्फो का सॉफ्टवेयर है, CDC अटलांटा का, फ्री है, ईपी इन्फो। उसका शायद अभी एडवांस वर्जन है, वो बहुत बढ़िया है। उसमें बेसिक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस भी हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं, और वो एक अच्छा है, क्वेश्चन बेस्ड सर्वे डेवलप कर सकते हैं ये सर्वे करने के लिए। एंड बहुत अच्छा है अगर किसी के पास SPSS है या स्टेटा है, ये 2-3 चीज़ें हैं ऐसी जो मतलब सॉफ्टवेयर आती हैं, उनको अगर आप रखें तो इन सब चीज़ों में मदद मिलेगी, उससे ज़रूरी है वो। नेक्स्ट, एक बात और आती है, हम कभी कभी कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। मतलब क्या होता है कि हमने स्टेटा बना लिया, हमने जैसा मान लिया यहाँ पर हमारा दो स्टेटा है या कई हो सकते हैं। पहला है मेल एंड फीमेल, 2 ग्रुप। तो हम जब रैंडम करेंगे तो मेल का अलग लेंगे, फीमेल का अलग लेंगे, इकट्ठा नहीं लेंगे। फिर हम कर देंगे एज वाइज भी कि भाई मान लीजिए बच्चे यहाँ पे हैं, मे बी 25 से 30 एक तरफ या 20 से 30 एक तरफ, 30 के ऊपर अलग हो गए, तो ये दूसरा स्टेटा हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
ये भी एक तरह का ही है, मल्टी सप्लिंग है। ये रेफरेंस बुक भी ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़िए। हाँ एक मिनट बैठ जाइए तो। हाँ ये कुछ बुक्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बुक जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, BK महाजन साहब की हैं, SP गुप्ता की हैं, नीचे हैं। ये ऐसी बुक्स हैं जो आपके कभी कभी उसमें काम आ सकती हैं, मतलब जब भी आप कुछ बनाएं तैयार करें। नेक्स्ट प्लीज़। ये उसी चीज़ को दिया हुआ। नेक्स्ट डाटा मैनेजमेंट का भी है, जो कुछ डाटा आप जनरेट करते हो प्रॉपरली कंप्यूटर बेस्ड स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट एचएस मैंने बता दिया है, दिस इज द पॉइंट। फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, यस नाउ दिस इज द पॉइंट। अब जैसे कि हर फंडिंग के लिए अपना एक वो होता है कि भाई आपकी सर्टन कंडीशंस होती हैं, जैसे ICMR हो गया, DBT है, DST CSR है, रिलायंस फाउंडेशन है, वेलकम ट्रस्ट है, NGOs भी देते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज भी देती हैं, बाहर की है, NIH है, US की है, मतलब लॉट ऑफ एजेंसीज हैं जो देती हैं। मगर फंडिंग के लिए आपका अपना यूनिवर्सिटी उसके लिए जो क्राइटेरिया है, जो एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में है, वो एलिजिबल है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। प्लस जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, जो उनका प्रोटोकॉल है, उसको बहुत ही रेगुलरली पढ़ें। वॉट एवर डॉक्यूमेंट इज़ नीडेड वो पूरी फुलफिल करनी चाहिए। आई होप कि अगर वो पूरा है और आपके स्टडी डिज़ाइन में यानी प्रोजेक्ट में जान है, तो देर इज़ नो रीज़न वाई योर प्रोजेक्ट इज़ नॉट बीइंग एक्सेप्टेड। हाँ ग्रांट आपने 1 करोड़ मांग लिया है, हो सकता है वो 85 लाख दे दे, 70 दे दे, ये हो सकता है। कहीं कुछ फंडिंग में कटौती कर दे वो, मगर नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। अगर अच्छा है, एक्सपर्ट्स उसको समझ रहे हैं कि इट इज़ गोइंग टू हैव सम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, ज़रूर करेगा वो। नेक्स्ट फंडिंग यही है, इन एरिया में मिल सकता है आपको। बायोटेक्नोलॉजी में है, इम्यूनोलॉजी में है, अलग अलग ग्रुप्स के भी लोग हैं। आगे बढ़िए, धन्यवाद। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, फंडिंग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये होती हैं कि आप कौन से प्रोजेक्ट में किस चीज़ को किसके लिए फंडिंग करें। आपका जो प्रोजेक्ट है वो ये तय करता है कि किस पे कहाँ फिट होता है। अगर शर्ट की साइज हमारी 40 है तो 45 तो नहीं आएगी, तो हमें अपने प्रोजेक्ट को देखना होता है कि भाई मुझे ये जो हमारा वर्क है, इसका जो थीम है वो किस फंडिंग एजेंसी के डोमेन से मिलता है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर डोमेन से मिले, आई डू नॉट फाइंड एनी रीज़न। मोर ओवर एक बात और है, जितनी फंडिंग एजेंसी हैं ये सारी एजेंसी अपने कॉल को निकालती हैं कि भाई इस महीने में 2 महीने के लिए ये कॉल ओपन है। हम ICMR की कॉल निकालते हैं। आप लोग ICMR की जो हमारी मेन वेबसाइट है यहाँ दिल्ली वाली, उस पर डालें करियर अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे एक कॉलम है, वहाँ पे जाएं आप। जिसको जॉब है, चाहे रिसर्च स्कॉलर हो, ये हो, उनके लिए भी है, और कॉल भी वहाँ ओपन होती है। आप देखें, वहाँ अप्लाई करें। हमारे लिए कोई सेवा है तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। के साथ-साथ स्टूडेंट्स ने भी रिलेट किया होगा, क्योंकि बच्चे हैकेथॉन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उसमें रिसर्च प्रपोजल लिखना, चलो तैयारी काफी बच्चे कर रहे हैं। नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जरूर रिलेट किया होगा, जो भी सर ने बताया कि कैसे प्रोजेक्ट लिखना है, रिसर्च पेपर पढ़ के उसको कैसे जोड़ना है, ये सारी बातें बच्चों ने भी रिलेट की होगी। किसी को कोई सवाल या क्वेरी पूछनी है? Should we go in field of research if we are interested, or we should challenge our mind to learn new opportunities like ICMR अभी आपने बोला जो opportunities provide करते हैं, तो ऐसा हो सकता है उसमें हमारे interesting topics ना हो, but we can challenge our mind, right? No, I think mind should not be changed because mind is the one which is going to persist longer. अगर हमारी ICMR की आज कॉल नहीं आई है
कल हो सकता है कि आपके माइंड के अनुसार ही आ जाए। सो मैं समझता हूँ कि जो पैशन आपका है, जो समझ है, हाँ समझ में बदलाव हो सकता है, क्योंकि देखो बचपन से हम कुछ हमारे अपने वो होते हैं, आइडियल्स होते हैं, वो चेंज होते जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने कुछ अपना एक माइंड चुना है, इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन सर्टेन ऑब्जर्वेशन। जो कुछ तथ्य आपने देखा है उस पर किया है। अगर आईसीएमआर की कॉल उसके लिए सुटेबल नहीं है, देयर कुड बी डीवीटी की कॉल हो सकती है, डीएसटी की हो सकती है, बाहर की एजेंसी की हो सकती है। इवन आईसीएमआर में भी जैसे कॉल मान लीजिए सपोज आज किसी और चीज़ की है, हमारे वहाँ कॉल निकलती है ड्रग्स की, डायग्नोस्टिक की, इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च की, सब्जेक्ट वाइज होता है, पैथोजन वाइज होता है, कहीं कॉमन भी होता है। तो लॉट ऑफ कॉल इज देयर। आई डू होप कि कोई न कोई कॉल आपके माइंड से अलाइन करेगी ज़रूर, बट माइंड जो है वही मेन है। आपको उसमें भी बदलाव होते हैं। मेरा वही कहने की इच्छा है कि जो भी आपका अजम्पशन हो वो इट शुड बी ऑन सॉलिड बेसिस। मेन चीज़ वही है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर आईसीएमआर अगर पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए कोई ट्रेनिंग का सेशन, असल में आईसीएमआर में प्रोविज़न है, वो बेसिकली हेडक्वार्टर पे तो नहीं है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स हैं उनके यहाँ एक प्रोविज़न है कि वो जो डिजिटेशन वर्क है एमएससी का, वो हमारे यहाँ हम लोग लेते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट ऑफ द साइंटिस्ट, हर साइंटिस्ट को 2, 3, 4 इस तरह से बच्चे हम अलोकेट करते हैं। इस साल हमने करीब 48 बच्चों को अलोकेट किया था। सबके हो गए, मेरे ख्याल में कुछ 2, 4 के बचे हैं, बाकी लोगों ने कर लिए हैं। अच्छा रहता है क्योंकि वहाँ पर मशीनें हैं, टूल्स हैं, और देखिए बेसिकली बच्चों को एक ओरिएंटेशन होना चाहिए, वो मिल जाता है उनको वहाँ पे। 6 महीने में तो कोई हाई फाई साइंस नहीं हो सकती, मगर एक साइंस कैसे की जाती है ये उनकी समझ आती है, तो वो अच्छे से करते हैं, सीखते भी हैं, और उन्हीं में से आज बच्चे कुछ आगे के चलते बड़े अच्छे एकेडमिक लाइन में जाते भी हैं। तो यस पॉसिबल है। ग्रेजुएशन के लेवल पे जो 1 महीने का होता है ना, चूँकि हमारे पास में रिसोर्सेज कम है, इच्छा तो होती है कि उनको भी बच्चों को मौका दें, लेकिन चूँकि साइंटिस्ट का भी अपने काम होते हैं, बट हाँ 2-4 को ज़रूर एकोमोडेट किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड। अगर चाहें तो हो सकता है, ज़रूर, क्यों नहीं। आपने बोला कि जो रिजर्वेशन और वो सब तो होता है, लेकिन कुछ शॉर्ट पीरियड्स के इंटर्नशिप्स या वर्कशॉप्स ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, वर्कशॉप में हम लोग सोच भी रहे हैं कि असल में क्या था, पिछले कोविड के वजह से ना बहुत सारे प्रोग्राम सब गड़बड़ हो गए, तो कोविड ने अभी थोड़ी सी राहत दी हम लोगों को। तो वी आर गोइंग टू मेक ए वर्कशॉप जिसमें कुछ बायो मेथड के मल्टीबायोलॉजिकल मेथड्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग हम कराएंगे। हमारे यहाँ होता रहा, पहले से भी हम लोगों ने किया है। आई होप यू आर राइट कि थोड़ा बच्चों को एक्सपोजर हो, 1 महीने का हो, 2 वीक का हो, ऐसा कोई वर्कशॉप हो एक लेवल पे। यस, व्हाई नॉट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी हमारा एक है एस्पेक्ट, और हम चाहेंगे ज़रूर। तो यस, देयर इज़ ए चांस ऑफ। सर ये सब इन्फॉर्मेशन अगर हमें लेनी है तो आपकी आईसीएमआर की? हाँ बिल्कुल है बिल्कुल। हाँ, अगर कभी भी जैसे हमारे यहाँ वर्कशॉप या कोई ट्रेनिंग का होता है तो हम लोग पोस्ट करते हैं अपने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे और हेडक्वार्टर पे, इन दोनों पे तो रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। नॉर्मली हम लोग यही करते हैं ताकि वाइड सर्कुलेशन हो। ऑफ कोर्स देयर कुड बी सिलेक्शन प्रोसीजर, जो एप्लीकेशन आएगी उनका कुछ मेरिट देखेंगे हम, बट बाय एंड लार्ज इट विल बी डिस्प्लेड ऑन दैट। श्योर, यस बिल्कुल। आई थिंक ये सारे बच्चे जो बैठे हैं यहाँ पे, जब भी इतने मोबाइल गेम खेलते होंगे, व्हाट्सएप पे रहते होंगे, ये 1 सप्ताह में करें, टाइम ले लें, फ्राइडे के दिन शाम को आधा घंटा खाली आईसीएमआर की जो मेन वेबसाइट है, एक कोविड की वेबसाइट है, जब पहले खोलेंगे तो कोविड की खुलेगी, वहीं पे नीचे लिखा हुआ मेन आईसीएमआर वेबसाइट, वो उसको खोलें और करियर वाले में जाएं, वहाँ देखें क्या कुछ है, उनके काम का है क्या नहीं है। और इसी तरीके से जो कंसर्न इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, वहाँ भी देख सकते हैं। तो देयर इज़ ए बिकॉज देखिए नाउ डेज इज़ पॉसिबल
पहले तो हम लोग को बड़ी दिक्कत होती थी यार, कहाँ पे फेलोशिप खुली कि नहीं खुली है, कौन सा जर्नल लेकर के आओ, उनके पीछे में जाओगे तो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। नॉलेज इतना है कि जिसको हम संभाल नहीं सकते। आई टेल यू, इतना है कि अगर आपका व्हाट्सएप ना बंद हो तो शायद दिन रात सब बराबर हो जाएगा। और रात का जो टाइम स्लॉट है, कभी कभी लगता है कि दिन रात छोटे हैं, 24 घंटे बजाय कुछ और बड़ा होना चाहिए था। तो ये है, बट इट्स वेरी गुड। आप लोग एक बड़ी ही चैलेंजिंग टाइम में हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन का पूरा फ्लड है। डिपेंड करता है कि उसमें से कितना आप ले पाते हो, कितना आपके लिए रिलेवेंट है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे निगाह से। So let us wind up this session today. One last question. So we'll take this last question, right? सो सर, आपने अभी कहा था कि अगर जब हम टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तब हमें ये भी देखना होता है कि वो जो रिसर्च करेंगे वो कितने टाइम पीरियड में खत्म हो सकता है। सपोज से 4-5। लेकिन अभी अगर मुझे अभी से कोई टॉपिक पसंद है तो इस टॉपिक पे रिसर्च करना है, जैसे कि मुझे अगर सारे जेनेटिक्स है कुछ ऐसे टॉपिक्स पर रिसर्च करना है जो बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, उसको मुझे वो टॉपिक में कब सिलेक्ट कर सकते हैं? तो आप ऐसा करें, देखो ऐसे में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, आपके टॉपिक में 2-3 ऑब्जेक्टिव होंगे, तो उनको 2 ऑब्जेक्टिव ऐसा चुन लें जिनको आपके टाइम फ्रेम जब तक आपको डॉक्टर डिग्री मिल जाए तो आप उनको चुनाव कर लें। बिकॉज देखिए, आपका एकेडमिक टाइम इम्पोर्टेंट है, आपके लिए टाइम प्रेशियस है। तो जो भी आपका 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का जो नॉर्मल पीरियड होता है उसमें वो टॉपिक कवर हो जाएं। जब आप रिसर्च करके डॉक्टरल डिग्री ले लें तो आपको आरशिप मिलती है, उसमें पीएचडी की ज़रूरत है। आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको बाद में ले लें, या उन पर एक नया प्रोजेक्ट बना लें अपने गाइड से मिलके, अगर उसी क्षेत्र का है तो देन यू डेवलप फुल प्रोजेक्ट। तो जो रिमेनिंग पार्ट जो आपका एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान था, जो बिकॉज आप पीएचडी नहीं कर पाए समय की वजह से, उनको वहाँ कैरी कर सकते हैं। ये हाँ, उसको आप डिवाइड कर दें। दिस इज़ द ओनली वे। बिकॉज अगर आपको मान लीजिए सपोज कुछ ऐसा करना है जो रियली टाइम टेकिंग है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर योर डॉक्टरल डिग्री। तो फिर वो आप उसका एक कोई कंपोनेंट चुन लें जो इम्पोर्टेंट लगता हो, जो फिजिबल भी है वो कर लीजिए, बाकी के लिए आप फ्यूचर में कर लीजिए। दैट इज़ पॉसिबल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज के दोनों ही सेशंस में सर ने हमें elaborately answered your questions, also Thank you. all the ways to describe and disease as well as the research topics which are important for us. Now I call upon Dr. Anjali Soni to extend the vote of thanks. थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को लें अपनी लाइफ में। और बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमारे ज़माने में नहीं थी। यू आर द लकी गाइज। सो इसको अच्छे से करो, जो काम को करो मन लगा के करो, मैं ही कहना। थैंक यू वेरी मच। ओके। So, good afternoon all. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I, Anjali Soni, feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this invited talk event. On behalf of Department of Biotechnology, VNSGU, I extend a really hearty vote of thanks to our guest, Dr. A.M. Khan, who spared time from his busiest schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your views and guidance. This will surely be going to encourage us and our students in their future assignments. Your thoughts have enlightened us, our minds, and shown us the way to fulfill them. I am thankful to our friends from other institutes also for attending this event. I am immensely thankful to Ms. Ambika for her efforts towards planning and anchoring today's event. I am thankful to Chirag Bhai for
computer assistance and spreading the message. I am very much thankful to all my faculty colleagues, non-teaching staff members who has always stand by us. So thank you all. Thank you very much. So while concluding the event, after national anthem, we'll have a group photograph here. So please stay here after national anthem. So now I request everyone to stand up and respect the national anthem. Jana Gana Adhinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkal Banga Vindhya Himachal Yamuna Ganga Uchchal Jaladi Taranga Tava